Hello, friends. Hello, friends. Myself, Deepak Gupta. On this platform of collegeeco.com, I am signing in again on our journey of interesting topics. And today, we will take on with the GST, one of the most hot topics that is trending. So, this goods and service tax. Like our journey on this platform of collegeeco.com, we are in conducting these sessions on the one of the most trending topics. On the same lines, this GST has had a very long and interesting journey. With someone should say that primarily started in 1984 with MODVAT, modified value added tax. It got its wing in 1991 when India got into major exercise of economic reforms through that funda of VAT, which was imported from France. So it's a kind of French indirect taxation concept. It further got into certain things, I should say something material. पहली बार इंडिया में इसके बेसिस पर अगर हम कहें कि कुछ बेसिक लॉ बना तो वो 1994 में when मनमोहन सिंह introduced the concept of service tax. It again got into major application in the whole of the country was in 2000 when various state VATs were introduced, and finally it came into existence in 2017 where we had unified indirect tax including both goods as well as services. So in this concept here we will be focusing on two things. Firstly, this whole journey is the unification and improvement of Indian indirect tax system. तो मुझे ऐसे कहना चाहिए कि GST, which is a applicable name for the taxation concept of VAT, which was a French concept. So basically, when India started adopting this, and finally we get it into 2014, so it's a kind of freedom of our taxation system from colonial mindset. So from colonial taxation, we moved to free India taxation, where the burden of taxation on the public was humongous and unjustified in colonial taxation system. How? हम डिस्कस करेंगे उस बात को. And because these French have a very effective taxation system, so we imported this good vibe taxation system from France and incorporated in our indirect tax system, and we finally got ourselves freedom from this colonial taxation. And why I'm using this word that we will be discussing on, you will have to wait for 5-10 minutes before I make you understand that why I'm making such a big statement that it's a kind of freedom for our taxation system. Because for that we have to understand what was going on earlier and now what this GST has brought into, and that is what the basic purpose of this demo session is. So हमारा बेसिक पर्पस हम आज ये भी समझेंगे कि जीएसटी एक्चुअली में है क्या, एक आउटलाइन, बिकॉज इट्स अ बिग कॉन्सेप्ट, सारा एक सेशन में कवर नहीं हो पाएगा. उसके अलावा हम इसकी जर्नी को थोड़ा सा आउटलाइन नोटिस करेंगे कि व्हाई दिस जर्नी इज सो क्रूशियल फॉर द इंडियन इकोनॉमी. एंड इन एडिशन हम ये भी नोटिस करना शुरू करेंगे कि ये यूनिफिकेशन या टैक्स रिफॉर्म कैसे है, व्हाई इट इज सो क्रूशियल फॉर नॉर्मल पीपल लाइक यू एंड मी. Though I am a tax advocate, tax professional, teaching and practicing taxation for the more than 20 years now, around 25 years, I should say. I have already worked with the income tax department on their TRP scheme, but still I understand or I believe that this was long due and we got it late.
Whatever the reasons are, they may be political and whatever that I am no, I should not comment. But it's a kind of much awaited tax reform which the country has got. Why? Because before 1991, we were making tax or charging indirect tax only on the goods. That is the tangible goods. In the services, for example, अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ. अगर कोई डॉक्टर किसी को कंसल्टेशन दे रहा है तो वो सर्विसेज दे रहा है. तो इट कैन बी सेड कि अगर एक बुक सेलर ने बुक्स सेल करी, हाँ, और अगर किसी टीचर ने किसी बच्चे को पढ़ाया, एजुकेशन प्रोवाइड करी, बोथ आर बिजनेस. एक बुक सेलर है और एक टीचर है जो एजुकेशन को पर्पस बिजनेस पर्पस की तरह यूज कर रहा है. बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यहाँ पर जो आइटम है बुक्स ये गुड्स हैं और ये जो एजुकेशन है ये सर्विसेज हैं. तो इन द अर्लियर रिजीम ऑन द गुड्स की सेल was subjected to indirect tax and known at that time as sales tax. But when the case was here, like a teacher providing services, a consultant providing services, an architect providing services, an advocate providing services, तो ये सर्विसेज थी. और इन सर्विसेज के अंदर क्योंकि कोई ट्रांसफर ऑफ टाइटल नहीं था, तो सेल में तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल था, इसलिए सेल्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई और सेल टैक्स लगा दिया गया. बट यहाँ पर कोई ट्रांसफर ऑफ टाइटल नहीं था. बिकॉज देर वॉज नो ट्रांसफर ऑफ टाइटल, देर वॉज नो सर्विस टैक्स. तो एक तो ये प्रॉब्लम थी. वी वर इन नीड और वी वर इन सर्च ऑफ taxes to be levied on the non-tangible, that is service regime. Secondly, we lacked the system of VAT. Now, what was that? So, before I come into this concept of VAT, so we first have to understand that what happened in 1991 was strongly two things. That we started on the path that we should be involving service tax also, the tax on the services, and we should be building our old sales tax, which was non-VAT. So we should convert that non-VAT taxation into VAT sales tax system. But because sales tax is a state matter, so this can be done when there was a unified effort from all the states involved. And that was the primary reason I should say, sorry, that VAT took so many years to be effectively compromised as GST. And this compromise should not taken into a negative sense. So what happened that in 1994, because a new tax was created on the service, which was not mentioned in the constitution to be a state subject, so Manmohan Singh made this service tax as a central tax. So it was a central indirect tax. And when he created this taxation system, he based it on VAT, more or less. So he started this concept of service tax and he wanted to bring this old non-VAT sales tax into the VAT system. And then he obviously had a vision that he will in some day merge them and will remove the difference between goods and services. So we should be having a unified taxation system on the commodities, irrespective of the fact whether they were goods or they were the services. So vision was there, efforts were made to put it into existence, but because of the major issue that sales tax was a state matter and which had to be taken into consideration that all the states should agree, and that is why because of political differences, it took so many years to come into existence and needed a strong leadership so that it can be made a reality. So how that was made, we will be discussing in some other session. But at the moment, I'm saying that when in 1994 service tax was abolished, so we firstly on for the first time हमें इंडिया में एक ऐसा indirect taxation system मिला जो primarily VAT enabled था, and it gave us a solid start towards unification of all indirect taxes under the framework of the GST. Firstly. And that is why when he started this service tax,
He didn't create any act, no act. He started with the notification in the official Central Gazette, and every year he broadened the scope of the service tax. And when till 2005 6 it become a major revenue generator for the government, then we talked of merging the service tax with the sales tax. Now, keeping this aside, we should now move on what I'm trying to say with the word VAT. And when we understand this word VAT, then we will be able to understand what is GST. So I should make a basic example that normally under non-VAT system, what happened? We should take a simple example, A to B, B to C, and then to consumer. ये एक बेसिक साइकिल है कि यहाँ एक होलसेलर या आई शुड से डिस्ट्रीब्यूटर है, और मैं एग्जाम्पल को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर इसको मैन्युफैक्चरर बना देता हूँ. आई शुड मेक दिस ए, so I should literally broaden this. So I should say A is the manufacturer, he is the wholesaler, he is the retail seller, and that is the consumer. Now, if A has to produce and sell a good to B, तो यहाँ अगर goods का ट्रांसफर हुआ, तो नॉर्मली क्या हो रहा था कि जब गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी, और जब गुड्स की सेल हुई तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा. नाउ बी गॉट द गुड्स, नाउ बी ने सी को गुड्स बेचे, तो यहां जब ये गुड्स ट्रांसफर हुए तो यहां पर सेल्स टैक्स लगा, और जब कंज्यूमर के पास गुड्स आए तो फिर यहां पर सेल्स टैक्स लगा. तो एक्चुअली नोटिस करिए एक छोटी साइकिल है. नॉर्मली इस साइकिल में कंज्यूमर से पहले चार लोग होते हैं, कई बार पांच भी हो सकते हैं, ये साइकिल और लंबी हो सकती है, बट हम एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ लें. तो हो क्या रहा था कि आईडीटी का फंडा क्या है, दैट टैक्स हैज टू बी पेड टू द गवर्नमेंट बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर. So these parties A, B, C, they have to collect the tax from the consumer because that is the basic fund of indirect tax. And that is why indirect tax allowed every seller to collect the tax from the buying party. So A, when produced and sold the goods to B, then this tax was paid from B to A, and A paid tax to the government. When this was the sale one. Now when this was sale one. Now when this sale two was made, C paid tax to B and B paid to the government. तो गवर्नमेंट को पहली बार टैक्स यहाँ पर A से मिला, फिर यहाँ पर टैक्स B से मिला. And when this sale 3 was made, C collected. तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर C ने B को दिया, तो यहाँ पर ये जो कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर किसको दे रहा है, C को, और C किसको दे रहा है, गवर्नमेंट. तो बेसिकली गवर्नमेंट के पास तीन बार टैक्स आया, A से, B से, C से. ए ने बी से लेके गवर्नमेंट को दे दिया, यहाँ दिखा देता हूं मैं इसको ग्राफ को. ए ने बी से लेके गवर्नमेंट को दे दिया, बी ने सी से लेके गवर्नमेंट को दे दिया, और सी ने कंज्यूमर से लेके गवर्नमेंट को दे दिया. और जब ए टैक्स चार्ज कर रहा है बी से, इस एग्जाम्पल को अगर मैं हल्की सी फिगर्स लेकर आ जाऊं, एक कि ये मान लो सेल वैल्यू 1000 रुपीज है और उसके ऊपर जो टैक्स लगा वो मान लो 10% था, तो 100 रुपीज हो गया, तो 1100 रुपीज. ये बेसिकली सेल वैल्यू है ए की और परचेज वैल्यू है बी की. तो व्हाट इज हैपनिंग हेयर कि बी की कॉस्ट में 100 रुपीज टैक्स ऐड हो गया. नाउ व्हेन बी मेक्स अ सेल टू सी, तो बी कहता है कि मेरी कॉस्ट तो 1100 रुपीज है, उसके अंदर वो अपनी कॉस्ट ऐड करता है, अपना प्रॉफिट का मार्जिन ऐड करता है, एंड देन ही मेक्स अ सेल टू सी. तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये सारा कुछ मिला के 1500 रुपीज है और टैक्स का रेट दोबारा से देखा जाए 10% है, तो 150 रुपीज यहाँ पर टैक्स चार्ज हो गया, तो 1650. तो बेसिकली यहाँ पर 100 रुपए टैक्स मिल गए, यहाँ पर 150 रुपीज टैक्स मिल गए. नाउ व्हाट द पॉइंट
कि because the tax paid by the B has been incorporated in his cost. So when again sale is made, what is happening? This sale value of 1000 from A to B is included here. It includes 1000 rupees original sale value plus 100 rupees टैक्स. तो जब आपने पूरे 1500 पे टैक्स चार्ज कर लिया, तो एक वैल्यू जो पहले टैक्सेबल हो चुकी है वो दोबारा टैक्सेबल हो रही है. और टैक्स जिसे बी ने अपनी कॉस्ट में ऐड कर लिया था, उसके ऊपर वो इस 1500 में इंक्लूडेड है, तो उसके ऊपर भी टैक्स लग रहा है. तो एक तो यहां टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया. और दूसरा मल्टीपल टैक्सेशन हो गया, क्योंकि जब ए ने बी को बेचा तो टैक्स लगा, जब बी ने सी को बेचा तो टैक्स लगा, और जब सी ने बेचा कंज्यूमर को तब भी ऐसे टैक्स लगा होगा. तो ये जो टैक्स ऑन टैक्स था, ये कैस्केडिंग इफेक्ट, वी यूज द वर्ड कैस्केडिंग इफेक्ट. तो अंडर नॉन वेट सिस्टम which was primarily the colonial times, because the British government was more concerned about the increase. वो खजाना बढ़ाना चाहती थी कि उसकी क्यों का खजाना बढ़े, इंडियन पब्लिक को क्या मिल रहा है, क्या जेब से जा रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. और इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज में वो सब यही कर रही थी. इसी टाइम पर अंग्रेज 120 कंट्री पे राज करते थे. तो वहां पर कैस्केडिंग इफेक्ट भी हो रहा था. ये दो मेजर लूप होल्स हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं. और मल्टीपल टैक्सेशन भी हो रहा था. एंड दीज टू वर एक्चुअली किलिंग द पब्लिक, किलिंग द कंज्यूमर, बिकॉज उसका जो प्राइस था वो बहुत महंगा होता जा रहा था, और क्यों का खजाना बढ़ता जा रहा था. नाउ व्हेन वी गॉट फ्रीडम in 1947 and we became a republic in 1950, we should have done this and we should have removed this. But at that time, economy was so poor, and our focus was through 5 years plan to develop economy through agriculture development, through industrial development, and through all those things. And we were also affected by so many wars. So most of our time was, yeah, and our attention was not given to this curse, which was hunting the Indian public. So it went on till 1990. There must have been some reforms, but they were not so material that we can discuss. But Indian public kept on doing this. And that too, different states have different tax rates. तो मल्टीपल टैक्सेशन था, कैस्केडिंग इफेक्ट था, और मल्टीपल टैक्स रेट्स थे. तो हर स्टेट के अंदर एक्साइज ड्यूटी के, सेल्स टैक्स के रेट्स अलग थे. हर स्टेट अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए अलग अलग टैक्स के रेट्स चार्ज कर रहा था. तो बेचारा जो कंज्यूमर है वो पहले ही महंगा माल खरीद रहा है कैस्केडिंग के कारण, मल्टीपल टैक्सेशन के कारण. फिर उसे लगता है कि एक आइटम दिल्ली में सस्ता है, यूपी में महंगा है, हरियाणा में सस्ता है, तो अलग अलग स्टेट्स में. ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि अगर हम दिल्ली से बात कर रहे हैं, तो दिल्ली के जो दो सबसे नियरेस्ट नेबर्स हैं, यूपी और हरियाणा. और नॉर्मली यूपी के अंदर टैक्सेस हमेशा से ज्यादा रहे थे, तो यहाँ पे आइटम के टैक्स ज्यादा होते थे इसके मुकाबले. तो बायर बड़ा कंफ्यूज रहता था. तो दिल्ली जैसे इंडस्ट्री के अंदर, दिल्ली जैसे एरिया के अंदर बाहर के बहुत बायर्स आते थे. दैट इज वाई जिन लोगों का बिजनेस दिल्ली में था वो बहुत ग्रो करा. एंड दैट इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ, देयर आर सर्टेन इफ्स एंड बट्स एंड कंटिजेंसीज, बट स्टिल दैट वाज द ब्रॉड सिनेरियो. तो हो क्या रहा था यहाँ पर, ये सब पब्लिक को बहुत तंग कर रहा था. अब हम यहाँ पर, अगर मैंने एग्जांपल लिया पहले ए से बी का और बी से सी का, ठीक है, यहाँ पर 1000 रुपीज के ऊपर 100 रुपीज का टैक्स चार्ज करके 1100 रुपीज था. और यहाँ पे इसकी कॉस्ट 1100 थी, प्लस इसकी कॉस्ट थी, प्लस इसका प्रॉफिट था. तो इसने 1500 रुपए का सेलिंग प्राइस लिया, 10% टैक्स लगाया, तो 1650 था. अब इस छोटे से एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं इस बी को ये कन्विंस करूं, बिकॉज बी इज नॉट द कंज्यूमर, कंज्यूमर तो यहाँ पे आके बैठा हुआ है, तो कंज्यूमर ने टैक्स देना है. इस बी को ये बात पता होनी चाहिए, या ये बी को मैं श्योर कर दूं कि भाई आप कंज्यूमर नहीं हो, इसलिए ये 100 रुपए आपकी जेब से नहीं जाएंगे. तो अगर मैं इस 100 रुपए को इसकी वापस रिम्बर्स कर दूं,
या इसे पता लग जाए कि मुझे जो मैं 100 रुपए अभी फिलहाल ए को दे रहा हूँ ये मुझे वापस मिल जाएंगे, तो व्हाट विल हैपन कि ये इस 100 रुपए को अपनी कॉस्ट में ऐड नहीं करेगा। एंड सेकेंडली, इस आइटम के ऊपर पहले टैक्स लग चुका है तो उसके ऊपर दोबारा टैक्स ना लगे। तो हमने बेसिकली क्या श्योर किया कि बी से बोला कि जब आप ए से गुड्स परचेज करते हो तो जितना टैक्स आप ए को देते हो, अगर आपने अपना माल सी को बेचा तो सी से जो टैक्स आपके पास आएगा, तो ये अगर टैक्स 1 है और ये अगर टैक्स 2 है, तो बी से ये कहा गया कि आप टैक्स 2 में से टैक्स 1 जो आपने पे करा हुआ है ए को वो अपने पास रख लेना, और जो बैलेंस बचेगा, अगर बचेगा तो वो गवर्नमेंट के पास जमा करा देना। ठीक है? यानी कि अगर ये फिगर 150 रुपीज है और ये फिगर 100 रुपीज है ऊपर वाली फिगर में से, तो 50 रुपीज जमा कराओ गवर्नमेंट के पास। तो कुछ लोगों ने कहा सर अगर ये किसी कारण से टैक्स कम हुआ, क्योंकि मेरा एक सेल बिल तो नहीं होगा, मल्टीपल सेल बिल्स होंगे, तो अगर मेरा टैक्स 1 से कम है, यानी कि मान लो ये 75 है और ये 100 है, तो मेरे तो 25 रुपए तो अभी भी नुकसान हो गया। तो गवर्नमेंट ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये 25 रुपए जो है मैं तेरे को रिफंड कर दूंगा, और यहां तो पे कर दियो। यानी कि जितना टैक्स तुमने अपनी बाइंग, क्योंकि तुम कंज्यूमर नहीं हो, तो जितना टैक्स तुम अपनी परचेज पर पे करोगे वो तुम्हें वापस मिलेगा मिलेगा। चाहे तो सी से कलेक्ट करके मुझे बचा हुआ जमा करा देना, और अगर सी से पूरा नहीं मिला तो जितना शॉर्ट पड़ेगा उतना मैं तुम्हें दे दूंगा। तो अगर मैं बी को ये अश्योर कर दूं कि तुम्हारी जेब से टैक्स नहीं जाएगा, तो मेरा कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा। मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि बी किसी भी हालत में 100 रुपए को अपनी कॉस्ट में नहीं ऐड करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है ये कैसे होनी चाहिए कि अब ये बंदा अपनी कॉस्ट 1100 ना ले, 1000 ले, उसमें अपने बाकी खर्चे जोड़े, बाकी प्रॉफिट का मार्जिन जोड़े। तो वी एक्सपेक्ट कि जो सेल प्राइस है वो 1350 के आसपास पहुंच जाना चाहिए, बिकॉज 100 रुपए तो कॉस्ट कम हो गई तो 1400, और ये जो प्रॉफिट है नॉर्मली कॉस्ट का परसेंटेज होता है, तो अगर कॉस्ट कम हो गई आपकी लगभग 7-8%, तो उस हिसाब से प्रॉफिट का मार्जिन भी कम हो जाना चाहिए। तो ऑन अ पॉजिटिव नोट वी अज्यूम कि 1350 हो गया। तो बेसिकली 1350 होते ही आगे वाले कंज्यूमर के लिए कॉस्ट कम हो गई। तो कैस्केडिंग इफेक्ट से बी पे और सी पे और ए पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो आप और मेरे जैसे अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं, हर सेल में, कंज्यूमर से पहले इस एग्जांपल में 3 सेल थी, हर सेल में से जब कैस्केडिंग इफेक्ट हटेगा तो टैक्स के हटने से जो उसकी परचेज प्राइस है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी, एंड द अल्टीमेटली द बेनिफिशियरी विल बी द कंज्यूमर, दैट इज द आम आदमी, आप और मेरे जैसे लोग। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि मल्टीपल टैक्सेशन हट जाए। यानी कि फ्रेंड्स, खाली एक चीज से ये तो है नहीं कि भैया जो मिल रहा है काम चला लो, जो डिफेक्ट्स हैं वो सारे हटने चाहिए। वी शुड नॉट बी लिविंग दैट जितना मिल गया ठीक है। हाँ, इंडियंस को लगता है कि डेमोक्रेसी में जो मिल रहा है ठीक है भैया ना। जो डिफॉल्ट्स हैं दे शुड बी इम्प्रूव फॉर द होल। जिस चीज को 100, 150, 200 सालों तक अंग्रेज चलाते रहे, 50 साल तक हम आफ्टर फ्रीडम चलाते रहे, और अब उसको हम लेकर आ रहे हैं, तो उसकी सारी गलतियों को हटाएंगे जो हमारे डेवलपमेंट को हैम्पर कर रही हैं और हमारे कंज्यूमर को बर्डन बढ़ा रही है। ठीक। कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह तो गवर्नमेंट का टैक्स का कलेक्शन कम हो जाएगा, बट वी बिलीव कि ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट था, मल्टीपल टैक्सेशन था, दिस वाज फोर्सिंग द मिडिल ट्रेडर्स टू गो इनटू ब्लैक इकोनॉमी। दे वर जस्ट नॉट वन और टू मिडिलमैन कंज्यूमर, मिडिलमैन बायर्स एंड सेलर, दैट इज अ ट्रेडर। यानी कि जो ये ए बी सी में से कई बार साइकिल में चार चार पांच पांच ट्रेडर्स आ जाते हैं बीच में, तो इस साइकिल में से कुछ ट्रेडर ऐसे थे जो बाइंग सेलिंग को वाइट में शो ही नहीं करते थे। माल खरीदा कैश में, माल बेचा कैश में, तो पूरी की पूरी सेल इकोनॉमी से गायब हो रही थी। तो गवर्नमेंट को लगता था कि अगर मैं ये वैट रिफॉर्म्स कर लूंगी तो ये जो ब्लैक इकोनॉमी के ट्रांजेक्शन्स हैं, जिससे मेरी जीडीपी कम है, तो ये हट जाएगी। तो ये ब्लैक ट्रांजेक्शन्स अगर ओपन होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी समझाते हैं आपको कि वैट जो है साइक्लिकल है, हर अगले बंदे को पिछले बंदे का हिसाब देना पड़ता है।
तो हर बंदा जो बीच में, हर ट्रेडर जो बीच में ब्लैक ट्रांजेक्शन्स करके टैक्स की चोरी कर रहा था, वो मोर और लेस तक लीक प्रूफ हो जाएगा, जो लीकेज है खत्म हो जाएगी। तो हमारी एक तो जीडीपी बढ़ेगी, ऊपर से ये सारी की सारी रेवेन्यू जब सिस्टम में आएगी तो टोटल सेल्स की क्वांटम बढ़ने से टोटल सेल्स टैक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि या टोटल वैट बढ़ जाएगा, क्योंकि टैक्स इज अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू। और तीसरी चीज ये होगी कि ये सारी की सारी जब सेल्स बढ़ेगी तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ने से जो इनकम टैक्स की चोरी हो रही थी उसमें भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बिलीव दैट बेसिकली इफ वी रिमूव दिस harrowing taxation experience, which is bad for the trader as well as highly bad for the consumer, अगर हम इसको हटाकर इफेक्टिव एफिशिएंट वैट सिस्टम लेकर आएंगे जिससे कि कैस्केडिंग इफेक्ट हट जाएगा, जिससे कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्सेशन लॉज आएगा, जिसकी बेसिस पर मल्टीपल टैक्सेशन आएगा, तो उससे कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी, जो ब्लैक इकोनॉमी है उसका साइज कम होगा, उससे टोटल सेल्स बढ़ेगी, जिससे कि टोटल टैक्स कलेक्शन वैट कलेक्शन बढ़ेगी, सिस्टम में ज्यादा इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होने से हम लोगों की जो डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन, इनकम टैक्स की कलेक्शन है वो बढ़ेगी, और बहुत सारा अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स जो इस तरह की इंडस्ट्री में काम कर रहा था, जो कि रिकॉर्ड में नहीं था, उनको लेबर लॉ के और बाकी बेनिफिट्स मिलने शुरू होंगे। तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री जिसमें इंश्योरेंस सेक्टर है, लेबर लॉज के सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, ठीक है, बेसिकली दे विल वन वे और द अदर लेड इनटू द डेवलपमेंट ऑफ होल इकोनॉमी, बिकॉज जीडीपी का बढ़ने से पूरा कंट्री ग्रो करेगा। अब वो किस तरह इफेक्ट है वो कभी किसी दिन इको के सेशन में डिस्कस करेंगे, फिलहाल जीएसटी के सेशन में वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं वापस आता हूँ अपनी इस बात पे कि ये जो मल्टीपल टैक्सेशन है वो कैसे हटेगा। उसके लिए हमने बी को पकड़ा, फॉर एग्जाम्पल, और किसी को भी ले सकते हो। बी ने जब ए से माल खरीदा तो ये इसके लिए परचेज है, इस परचेज को बोला गया इनपुट, और इस परचेज के ऊपर जो इसने टैक्स दिया उसको बोला गया इनपुट टैक्स। और जब इसने माल आगे बेचा, किसको बेचा, सी को बेचा, तो इसे क्या बोला गया, सेल। सेल का मतलब क्या हुआ, आउटपुट। और इस आउटपुट पे वो टैक्स लेगा सी से, तो उस टैक्स को नाम दिया गया आउटपुट टैक्स। तो नाउ वी प्रज्यूम कि बी ने ए से माल खरीदा 1,000 रुपए के ऊपर, और ये ए से आया और सी को बेचा, तो यहां पर 10% टैक्स था, 100 रुपीज। तो 1100 इसके लिए सेल वैल्यू हो गई। लेकिन ये अपनी कॉस्ट प्राइस 1000 ही लेगा, क्योंकि हम इसको बता चुके हैं कि तेरे 100 रुपए जो है ये हम तेरे को वापस कर देंगे, और प्लस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का मार्जिन लेके, मान लो राउंड फिगर लेने के लिए मैंने 1400 का सेल प्राइस कर दिया, तो आगे वाला कंज्यूमर पहले ही अपनी जो परचेज प्राइस है उसमें 100 रुपए कम कर चुका है, बाकी जब वो सी से आगे जाएगा तो यहाँ भी बचाएगा। तो ये 1400 रुपए है, तो ये मान लो सेल वैल्यू हो गई। तो बी के लिए 1000 रुपीज तो वैल्यू ऑफ इनपुट है, बिकॉज हमने टैक्स को वापस करना है तो उस इनपुट में काउंट नहीं किया। और ये जो 1400 रुपीज है ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है। इसके ऊपर जब टैक्स चार्ज करोगे एट द रेट 10%, तो वो 140 रुपीज होगा। इसीलिए जो 100 रुपीज है, ये जो 100 रुपीज है, ये तो हो गया इनपुट टैक्स, और ये जो 140 रुपीज है ये हो गया आउटपुट टैक्स। तो वैट के बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट में वैट का मतलब क्या बोला, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये जो वैल्यू एडेड है दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। इट मीन्स वैल्यू एडेड shall be equal to 1400 minus 1000, that is 400 is the value added. So for B
400 is the value added. 400 is the value added. So when B has to pay tax, so B has to pay tax on this value added of 400 at the rate of 10%, and that is 40. तो बेसिकली जब ए से बी के पास गया, बी से सी के पास गया, आगे तो अभी हम एग्जाम्पल सेम कंटिन्यू कर हो जाएगा। तो यहां पर 100 रुपीज टैक्स बी ने ए को दिए, और ए से किसके पास चले गए? गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट के पास 100 रुपए आ गए। और जब सी से बी के पास आए तो यहाँ आए 140, लेकिन 140 में से 100 माइनस करने के बाद 40 रुपीज किसके पास चले गए? गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट ने 100 रुपए तो लिए ए से, और 140 जो सी ने बी को दिए, बी ने अपने 100 रुपए रखकर बाकी 40 दे दिए गवर्नमेंट को। तो अब आप नोटिस करिए, बड़ा सिंपल कैरेक्टर हो गया, सिंपल सा सिस्टम सिस्टम से चला गया। ए ने बी से लेकर गवर्नमेंट को 100 रुपए दे दिए। बी की जेब से फिलहाल 100 रुपए गए थे, लेकिन हमने उसे प्रॉमिस किया था कि भाई इसको कॉस्ट में मत जोड़, तेरे पैसे तेरे को वापस मिल जाएंगे जब तू माल बेचेगा। तो जब बी ने माल सी से लिया तो उसने गवर्नमेंट को कितने दिए? 40 रुपए। 140 में से 100 रख लिए, तो बी टेंशन फ्री हो गया। तो इसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, ए ने बी से लेके दे दिया। इसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, इसने जितना ए को दिया था सी से रख लिया और बाकी बचा हुआ गवर्नमेंट को दे दिया। सिमिलरली सी भी कर लेगा, सी के पास कोई बर्डन नहीं है। और अल्टीमेटली कौन आ जाएगा? कंज्यूमर। इस कंज्यूमर के पास क्या होगा सर? इसके पास, इसलिए मैं इसको प्रॉपरली रेड से करना चाह रहा हूं कि इसके पास मच रिड्यूस्ड burden, that is its sorry his purchase price is considerably reduced due to कोई मल्टीपल टैक्सेशन नहीं हुआ, ड्यू टू नो मल्टीपल टैक्सेशन एंड ड्यू टू नो कैस्केडिंग। इन दोनों के चक्कर में कंज्यूमर भी खुश और बीच की हर पार्टी भी खुश। तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं वैट को समझने के लिए, या दूसरा फंडा क्या है कि हम ये बोलें कि डायरेक्टली वैट इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। और क्योंकि ये लायबिलिटी कम कर रहा है तो हमने इसे बोलना शुरू कर दिया इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट टैक्स मैंने ऊपर आपको दिखाया था अभी कि आउटपुट टैक्स इज 140, इनपुट टैक्स इज 100। So VAT will be 140 minus 100 is equal to 40 payable। तो वैट आप चाहे इस मेथड से निकालिए चाहे इस मेथड से निकालिए। तो जब हम लोग जीएसटी और वैट के डिटेल डिस्कशन में जाएंगे कोर्स कंटेंट्स के साथ, तो वी विल अंडरस्टैंड कि वैट कॉन्सेप्ट है जिसको कैलकुलेट करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, प्राइमरली 3 मेथड्स हैं, बट उनमें से जो सबसे ज्यादा 2 यूजफुल है वो ये 2 सामने हैं। और इनमें से हम लोग इंडिया में, तो जो इंडियन वैट है दैट इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो इफ आई एम नाउ एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैट, तो नाउ इट्स द लास्ट स्टेज नाउ फॉर दिस सेशन कि हम अपनी इंडियन इकोनॉमी के अंदर खाली गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगा रहे थे। अब हमने पहला रिफॉर्म क्या शुरू किया कि सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स लगाना शुरू करा, इनको मर्ज करना था। और ये जो दोनों ओरिजिनली या ये वाला जो नॉन वैट था, इसको तो बनाया ही वैट बेस्ड, इसको नॉन वैट से कन्वर्ट करना था वैट बेस्ड। तो हमें बेसिकली गुड्स का और सर्विस का टैक्सेशन कंबाइन करना था। तो हमने क्या नाम दिया उसको? जीएसटी। एंड दिस जीएसटी वाज प्योरली वैट बेस्ड
वो हमने इनकॉर्पोरेट कर रहा था। इन सबको करने से हमारी ये कंफ्यूजन खत्म हो गई कि हमारे मल्टीपल टैक्सेशन है, तो इससे कैस्केडिंग हट गई, मल्टीपल टैक्सेशन हट गया, और ये कंफ्यूजन भी हट गया कि गुड्स पर टैक्स अलग है, सर्विस पर टैक्स अलग है। इसके अलावा जो सबसे मेन आइटम था कि क्योंकि सर्विस टैक्स तो सेंट्रलाइज था, लेकिन सेल्स टैक्स को स्टेट लेवल पे बनाया गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये एग्रीमेंट किया कि सारे स्टेट्स में यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स होने चाहिए। यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स होने से हर स्टेट को फायदा है, बट स्टिल कुछ स्टेट्स को लगता था कि हमारी सेल्स टैक्स की जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा है, और वो इस सिस्टम से हमारा टैक्स चला जाएगा सेंटर के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2017 अंडर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली एंड गाइडेंस ऑफ पीएम मोदी, व्हाट दे डिड, अगर किसी स्टेट को इस नए जीएसटी सिस्टम से टैक्स की रेवेन्यू जनरेशन में कोई नुकसान होगा, तो वो जीएसटी कॉम्पनसेशन स्कीम लाए गए, और उस जीएसटी कॉम्पनसेशन स्कीम से उस स्टेट को जो लॉस ऑफ जीएसटी होगा या लॉस ऑफ ओ टैक्सेस होगा, टैक्स और रेवेन्यू होगा, लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा जो पिछले रेवेन्यू के मुकाबले कम आ रही है, वो उस गवर्नमेंट को कॉम्पेंसेट कर दिया जाएगा। इन एडिशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पुराने जो इनडायरेक्ट टैक्स के सिस्टम्स थे वो सारे फिजिकल थे, प्योरली ऑनलाइन नहीं थे, और वो स्टेट स्पेसिफिक थे। अब जीएसटी को कंट्रोल करने के लिए, जीएसटी को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट काम किए गए। एक तो जीएसटी काउंसिल बनाई गई, जिसका जो प्रेसिडेंट है वो कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर है, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जैसे फिलहाल निर्मला सीतारमन है, और उसके मेंबर्स जो हैं वो सारे के सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं। तो अगर कंट्री में मान लो इस टाइम 28 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर जो है, और जो दिल्ली है जैसे स्पेशल जो स्टेट लेवल का है, उसका भी फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर, तो हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर उसका मेंबर है, एंड हेडेड बाय द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर। सारा का सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है, उसे नाम दिया गया जीएसटीएन। ये अपने आप में एक फुल फ्लेज सेपरेट एंटिटी बनाई गई है, जो सारा जीएसटी का सिस्टम ऑनलाइन होगा। तो जीएसटी में कुछ भी फिजिकल वर्क है ही नहीं, सब कुछ ऑनलाइन है। आप माल बेचोगे, आउटपुट की वैल्यू, आउटपुट का टैक्स, ये सारी डिटेल्स सबमिट करोगे, जितना टैक्स डिपॉजिटेड है वो खुद ब खुद ऑटो चेक हो जाएगा विद द सिस्टम। आप अपनी परचेज को लोड करोगे, जिससे जिससे परचेज करी है, तो हर डीलर को जीएसटी का नंबर दिया गया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया गया, उस रजिस्ट्रेशन से आप हर बंदे की सारी सेल, सारी परचेज मैच कर सकते हो। तो उससे कितना आउटपुट टैक्स है, कितना इनपुट टैक्स है, वो सारा का सारा ऑनलाइन खुद मैच हो जाता है। और जिस बंदे का टैक्स पेबल है वो बैलेंस पे कर देता है, और जिसका टैक्स टू बताया था पहले, टैक्स टू कम है, टैक्स वन ज्यादा है, उसको खुद ब खुद ये साइट रिफंड इश्यू कर देती है। तो हमने इस नए सिस्टम से कैस्केडिंग हटा दी, मल्टीपल टैक्सेशन हटा दिए, टैक्स का यूनिफिकेशन कर दिया, और सारा फिजिकल वर्क हटा दिया, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। स्टेट्स के जो एनोमलीज थी, डिफरेंसेस थे, सारे के सारे हमने वो हटा दिए, और मोरलेस सारी स्पाइंस इंडियन टैक्सेशन सिस्टम से हटा दी गई। बस एक छोटी सी चीज रह गई है कि अल्कोहल्स या अल्कोहलिक बेवरेजेस, अल्कोहल लाइक आइटम्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये स्टेट रेवेन्यू के सबसे बड़े सोर्स थे। तो कुछ स्टेट्स राजी नहीं हुए कि हम वी विल नॉट एक्सीड टू द जीएसटी, बिकॉज ये हमारे मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है एंड वी वांट टू कीप इट विद अस। तो इन आइटम्स को जीएसटी के परव्यू से हटाया गया। एट द मोमेंट दीज टू आइटम्स आर बाउंड बाय स्टेट। तो आइडियली जीएसटी ने पुराने वाले सेल्स टैक्स यानी कि वैट को हटा दिया, पुराने वाले एक्साइज को हटा दिया, ठीक है। उसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, इस तरह के बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दिया, सिवाय इन दो आइटम्स पर जिन पे स्टेट एक्साइज भी है, सेंट्रल एक्साइज भी है, प्लस पेट्रोल जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टेट वैट भी है। तो वैसे शराब वगैरह पे
शराब वगैरह पे स्टेट की एक्साइज है और स्टेट का वैट है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे स्टेट की एक्साइज भी है, सेंट्रल एक्साइज भी है और स्टेट वैट भी है। इसलिए शराब के रेट हर स्टेट्स में अलग अलग है बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्टेट एक्साइज रूल्स। और पेट्रोल के प्रोडक्ट्स हर स्टेट में अलग अलग है क्योंकि हर स्टेट के एक्साइज के रेट्स अलग हैं, स्टेट का वैट अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्साइज के रेट्स भी पूरे इंडिया में पेट्रोल प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल है। बट spine has been removed, the main key has been clicked कि इन दो के अलावा बाकी हर आइटम्स को जीएसटी के दायरे में लेकर आ गए। और नाउ we have a single unified GST system with primarily five rates: 5% to 12%, 18%, and 28%. These are the four primary rates, and we have primarily four types of GST. CGST मतलब सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी, यूनियन टेरिटरी के लिए यूटी जीएसटी, एंड देन वी हैड आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो आईजीएसटी इज नाउ चार्ज्ड ऑन इंटर स्टेट सेल्स। तो अगर कोई इंटर स्टेट इवेंट है, टैक्सेबल इवेंट है, इंटर आई शुड से इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। परसेंटेज यही रहेगी। तो अगर दिल्ली से माल यूपी गया और टैक्स का रेट उस आइटम पे 5% है, तो जितने भी आइटम्स थे, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, उन सारे के सारे आइटम्स को स्पेशलाइज एचएसएन नॉमेनक्लेचर, हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर, और एक कोड एसएसी कोड दे दिया गया और उस कोड से आप उसका परसेंटेज पहचान लोगे किस आइटम पे कितना जीएसटी रेट है। तो अगर एक आइटम कहीं भी बिके, अगर उस आइटम के कोड की बेसिस पर जीएसटी का रेट मान लो 12% है, तो जीएसटी 12% ही लगेगा। कंज्यूमर 12% ही पे करेगा उस वैल्यू पे जो कंज्यूमर के हाथ में आएगी। उससे पहले वाले सारे वैट से टैक्स को पे करके रिफंड क्लेम कर लेंगे। अगर वो माल इंटर स्टेट सेल हुआ, मान लो दिल्ली से हरियाणा सेल हुआ, तो 12% आईजीएसटी लग जाएगा। और अगर वो दिल्ली में सेल हुआ यानी कि इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट सेल हुआ, तो मान लो वो टैक्स जो 12% लग रहा है, टैक्स 12% ही लगेगा। उसमें से 6% चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सीजीएसटी, और बाकी 6% चला जाएगा या तो स्टेट के पास या यूनियन टेरिटरी के पास। तो अगर ये चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में है तो 6% सीजीएसटी, 6% यूटीजीएसटी। दिल्ली का दिल्ली में है, यूपी का यूपी में है, तो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। लेकिन दिल्ली से चंडीगढ़ गया तो ये कोई टैक्स लगेंगे, सारा क्या लगेगा, 12% आईजीएसटी। तो ये जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी ये सब गवर्नमेंट के नेटवर्क पे होंगी। कंज्यूमर की जेब पे जो बर्डन था वो सारा सारा खत्म हो गया। सो आई बिलीव it should give you an outline and the journey which was not so easy, and I should say very tough, and how it has taken into shape in the last more than 25 years now it's a huge achievement for our country that we are able to achieve this target of getting GST. So if someone, I should advise that if someone is advising you wrong things about GST, then it's a short-term effect, because normally either it is political or it is some short-term losses. In long term, it is a huge benefit to the consumer, like आम आदमी जो आपके मेरे जैसा बैठा हुआ है। So it's a much welcome move for the Indian economy, not just for the overall development, but for our pockets also. Thank you. This is Deepak Gupta signing off on this platform of policygo.com, and we hope to see you in the next session also. Thank you very much.